ऐसा। चलो, prepare a report for the board of directors of Parafuels which calculates the NPV। ठीक है, ये एक है, वैसे थियोरी है, देखते हैं अगर पढ़ते पढ़ते लाइन में आया तो कर लेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। Explain why Parafuels might include the value of the potential offer from Cairo Innovations when considering investment B। ठीक है, चलो। Parafuels produces paraffin from crude oil, which is refined for using as jet fuel. For many years, Parafuel was private company, but it listed 3 years ago and now has a wide range of diverse shareholders, including institutional investors. Parafuels has a number of production facilities, and one of these is coming to the end of its productive life. Parafuel's board of directors is considering two alternatives. First one is replacing its production facility with a new production facility which will be modern and largely environmentally friendly. This facility will continue to produce a paraffin from crude oil and is based on traditional technology. The second alternative is based on converting household waste into paraffin. Okay, using new technology which has the potential to dramatically reduce environmental damage caused by air traffic. The board of directors thinks it may be beneficial to convert the production facility based on its new alternative instead. There is a lot of uncertainty surrounding this investment. A competitor, Kero Innovations, has suggested that it may purchase the new alternative. A competitor, Kero Innovations, has suggested it may purchase the new alternative production facility at the end of the first 3 years of the investment. Okay. Details of the production based on both the traditional technology investment A and the new alternative मतलब वो technology investment B are given in the following exhibits. It is anticipated that both investment A and investment B will have a useful life of 25 years. Oh, okay. Parafuels company has a cost of capital of 25%. तो project 25 years तक चलने वाला है. ठीक है. Following information relates to investment A. ठीक है. The initial investment in the production facility will be 14 million. मोस्टली परपेचुइटी 25 ईयर्स तक ऐसे मतलब वो लगानी है, ऐसा कुछ तो ही होगा. पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 5 इतना पहले बना के रख देता हूँ, फिर देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट, कितना चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट, उसको चाहिए 14 मिलियन का, सो माइनस 14 मिलियन. Tax allowable मतलब वो depreciation is available on the production facility at an annual rate of 25%, reducing balance in years 1 to 3. ठीक है. And at the end of the 4 year, any remaining written down value can be written off as balancing adjustment. ठीक है. $14,000. कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लास्ट में जो भी आता है वो पूरा का पूरा उसने बोला है बैलेंसिंग अलाउंस. Tax allowable depreciation. ये 4 सालों का ही प्रोजेक्ट है, बस यहाँ पे प्रॉफिट्स
As with the production facilities of this nature, there will be no residual value after the 25 year project life because of substantial decommissioning costs. ठीक है. Sales revenue is expected to be 12.75 million. ठीक है. Sales revenue है 5%. Production costs are expected to be 5.25 in year 1. Production costs particulars 1, 2, 3, 4. Production costs inflation into 1.08. Production costs क्या होता है प्रोडक्शन कॉस्ट It is anticipated that working capital of 10% of sales revenue will be required in years 1 to 4 the start of each year. ठीक है तो वर्किंग कैपिटल ऑफ सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे आता है वर्किंग कैपिटल इज 10% ऑफ व्हाट वाज फॉर द ईयर बिफोर दैट तो यहाँ पे 10% आएगा लेकिन आई फील वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल तो ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे ही आना चाहिए यहाँ पे भी माइनस दिस प्लस दिस ऐसे ही आना चाहिए ये मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आएगा वर्किंग कैपिटल सॉरी ईयर 0 में आएगा ये और ईयर 4 में रिलीज नहीं होगा 100% श्योर ईयर 4 में रिलीज तो नहीं होगा ये ऐसा होगा देखो ईयर 5 में मुझे अगेन 8% का था ना रेवेन्यू ग्रोथ कितने की थी रेवेन्यू ग्रोथ वाज 5% सो रेवेन्यू ग्रोथ इफ इट वाज 5% सो 5% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अगेन into 1.05 यहाँ पे आ गया for years will be needed अच्छा नहीं no additional working capital will be needed in years 5 to 25 oh okay 5 25 में working capital की ज़रूरत ही नहीं है lol तो यहाँ पे माइनस सम ऑफ दिस मैंने डाल दिया ठीक है ये हो गया end of 25 years it is expected that the working capital will be required for decommissioning and will not be released अच्छा रिलीज होगा ही नहीं ठीक है Parafuels company pays tax at the rate of 20% on the profits in the year in which the tax liability arises.
टैक्स ऑन लॉसेज इज रिफंडेड इन द ईयर इन विच टैक्स लॉस पेड। चलो नाइस, तो यहाँ पे आएगा टैक्स, टैक्स विच इज दिस माइनस दिस, इसका 20%, ना ये मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद एन एस्टिमेट हैज बीन मेड ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज फॉर ईयर्स 5 to 25। ओ नाइस, द स्टार्ट ऑफ ईयर 5। ये 1 साल का है क्या? शायद ये 1 ही साल का है। तो इधर मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, कैश फ्लोज दिस, ब्रैकेट ओपन दिस, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यूज एनपीवी हाँ कल घर पे, कल आ जाना सुबह चलो। दिस इनटू दिस। मैं तो सुबह जल्दी आ ही जाता हूँ, आप पढ़ने के लिए नहीं आते हो। मैं तुझे नहीं बोल रही भाई। पता है, पता है, पता है, पता है। हम्म, हम्म, इसका जो डिस्काउंट फैक्टर है वो तो हमें दिया ही नहीं गया है। ओहो, नहीं दिया है, दिया है, देखो। पैराफ्यूल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एस्टिमेटेड एट 12%, चलो दिया है। कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना, ऐसा कि उन्होंने कुछ दिया था ऐसा? नहीं। 12% का है। ये रहा, 0893, 0797, 0712, 0636। तो ये हो गया मेरा एनपीवी फ्रॉम ईयर्स 1 to 4। लेकिन फिर उन्होंने मुझे दिया है कि भाई मेरा कुछ तो 5.4 मिलियन भी है। पर ये क्या है? एन एस्टिमेट हैज बीन मेड ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज फॉर ईयर्स 5 to 25। दिस टोटल्स $5.4 मिलियन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 5। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है या कैसा है? आप कहाँ तक पहुंचे? अब मुझे आपकी शेयर जरूरत है। करूँ ना? हाँ, एक सेकेंड। तो देता हूँ शेयर की परमिशन, ये लो। एक सेकेंड। चलेगा, चलेगा, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। अरे सही है। परफेक्ट। एंड विल नॉट बी रिलीज जो है ना, तो ये वर्किंग हाँ, कैपिटल तो हाँ, हाँ, कंटिन्यू विल नॉट बी चलता रहेगा, रिलीज्ड। ये पॉजिटिव हाँ, नहीं मैंने आएगा। कैसे किया है मैंने, अरे हाँ। हाँ, राइट, राइट, अरे मैंने भी इधर पॉजिटिव में डाल दिया गलती से। मैंने उधर बोला, पता है कि अरे ये आगे चल के पे होगा, फिर भी मैंने उसको गलती से पॉजिटिव में डाल दिया, बेवकूफ की तरह।
बस वो शिट। 25 साल तक चल रहा है ना। आगे राइट राइट एडिशनल राइट। रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो 25 साल के बाद मिलेगा। राइट राइट राइट। अभी इसके ऊपर बेसिकली सिर्फ 5400 जो हमें ईयर 5 का वैल्यू दिया हुआ है, इसके खाली इसको खाली पिछले साल का डिस्काउंट ईयर फैक्टर 4 के लगाना साथ है। क्यों मल्टीप्लाई? अच्छा, अपन वो उसके हिसाब से करते बराबर। हम्म। किसके हिसाब से? तो अ, आपको ये समझा क्या? पहली बात ये तो वो आपका प्रिडिक्शन कि अरे ये तो सिर्फ मेरा ईयर 5 का वैल्यू है, वो सिर्फ ईयर 5 का वैल्यू नहीं, वो टोटल वैल्यू है। समझा? ओके। वो टोटल वैल्यू है। मैं हाँ, फिर टोटल वैल्यू जो मेरी आती अच्छा। है वो आती है 5721, और पीछे दी हुई है अरे फाइव सेवन यार, वन सिक्स 5716। तो ठीक है, हम लोग क्या इतना भी कुछ गवारों ज्यादा, वाला हरकत की। क्या हम लोग अच्छे। का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग कितना है? अच्छे लोग हैं। उन लोग का 5716 है, मेरे को 5721 आ रहा है। आई एम आई मेरे को तो फाइंड माई कुछ पीस और ही विद इट। भलता आ रहा है। वेरी गुड, लेट्स गो। हाँ बराबर है। अभी ये जो वैल्यू है दिस प्लस एनपीवी, अपने इसका एनपीवी नहीं निकाला क्या? निकला ना, ये क्या है ऊपर? एनपीवी गलत है मेरा शायद। नहीं एनपीवी, हाँ एनपीवी गलत है। शी, ऐसा कौन निकालता है एनपीवी? गुड जॉब। ऊपर जाओ, ऐसा कौन निकलता मतलब? ऊपर जाओ, इधर जाओ 34,000 पे। ऐसा कौन निकालता है मतलब ऐसा गलत कौन निकालता है कि जहाँ पे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी ऐड किया हुआ है? ओ फक। एक सेकेंड। हाँ, ओके ओके ओके। हम्म। शिट। हाँ, सिल्ली मिस्टेक था ये। पैसा होगा यार एग्जाम में ये सब। नीचे आओ। तो नेगेटिव में चला गया बेचारा। बट एनपीवी फिर भी क्यों बराबर नहीं आ रहा है? नीचे आओ। एनपीवी, टेक्स्ट एनपीवी आपने गलत एनपीवी। कैलकुलेट किया। एनपीवी ऐसे गलत कैलकुलेट होता ही नहीं। इधर आओ, नीचे आओ। अरे यार। नीचे आओ। ये देखो, ये जो है ना यही गलत है, इसको डिलीट कर दो, इस सेल को। ठीक है सर। अब आप ये प्रेजेंट वैल्यू का सम ले लो। नेगेटिव आ रहा है मेरा प्रेजेंट वैल्यू। वाह, आपने ऐसा क्या किया? अरे यार, रुक जा भाई। हाँ राइट। अब देखो, अब बराबर आएगा। अब बराबर आने आना चाहिए, जो नहीं आएगा। और ये जो मैं कर रही हूँ बराबर ही है। अभी क्या अच्छा गलत है? मेरा 65, ये आपका ईयर इतना 4 में कुछ तो सिल्ली गलत है। मिस्टेक है। ईयर 4 में कुछ तो गलत है। टैक्स का रेट दिखा दो, टैक्स टैक्स ही गलत है। हाँ टैक्स गलत ही आएगा ट्वेंटी ना, परसेंट क्योंकि मेरा आपका ईयर 1 जो है, योर ईयर 1, सॉरी योर ईयर 4 इज इन नेगेटिव। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में मिस्टेक है, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट गलत कैलकुलेट किया है। आपको 5% का ग्रोथ लगाना है, आपने 8% का लगाया है। ऐसा कुछ तो आपने किया है बेसिकली वहां पे। बट उसने क्या नहीं, बोला था? नहीं आपने पता है क्या किया है? आपने मैंने देखो, इन्फ्लेशन रेट के वेल उसमें। डन, वेल डन। आपने गलत देखो क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेरा स्क्रीन देखो। इन्फ्लेशन इज ओके। ऑलवेज क्यूमुलेटिव इन नेचर। तो 6%, इसके ऊपर 7%, हाँ, आई नो आई नो आई नो। फिर इसका इन्फ्लेशन, ऐसा है वो। दिखाओ अभी आपका स्क्रीन। हो रहा है क्या मैच अभी तो? रुक जाओ, क्लियर तो करने देंगे तो।
प्रोडक्शन अभी यहाँ पे मेरा 6% है, तो ये 106 है। This will become into 107. वेरी गुड। बराबर है ना? हाँ बराबर है। कुछ गलत कर दूँ मैं? नहीं बराबर कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा अजीब वे में दिख रहा है, बट बस सही कर रहे हो। अजीब वे में दिखता है, क्या होता है? ठीक है, ये तो 6% बराबर है। इसको ना, ये जो मेरा ये है, इसके जगह पे मैं टेक दिस रेट, सेम यहाँ पे इसके जगह पे मैं टेक दिस रेट। ये तो मैंने किया नहीं। इतना वो करने परफेक्ट के बाद परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यही है एनपीवी हमारा। वेल डन। क्या मस्त सिली सिली मिस्टेक किया था मैंने। हम्म। कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का भी ये भी कैलकुलेट 25 साल करना का है। है ना? हाँ, पैराफ्यूल्स कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं ये है क्या कि उसके ऊपर भी था ना शायद इंफॉर्मेशन। हाँ, ये currently new technology used to convert household waste into paraffin is expensive to set up and run. Although setup and running costs are expected to reduce once this technology becomes established. The initial setup cost of the investment B project facility when using the new technology is estimated to be 34.6 million. So इसको करते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं नीचे ऐसे का ऐसे पेस्ट। फिर इन्वेस्टमेंट जो हमको चाहिए वो चाहिए -34,600 का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लोअर रेवेन्यू इनिशियली, द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज जनरेटेड बाय दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.4 मिलियन इन ईयर 1। अच्छा, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, चलो नाइस। डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज डायरेक्टली दिए हुए हैं। कितना दिया है मुझे? 1.4 मिलियन इन ईयर 1। ओके, इतना सा। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 40% इन ईच ऑफ द ईयर्स 2 एंड 3। ठीक है, तो 1.4 दिस, 1.4 दैट। उसके बाद in year 4 when the cost reduce and the revenues increases, the after tax free cash flows are expected to be twice as much as that in year 3। चलो नाइस, तो इसका twice as much, तो इसका डबल ये हो गया। उसके बाद due to high level of uncertainty with investment B, it is expected that the annual after-tax cash flows from years 5 to 25 will remain the same as the level at year 4. It is possible that uh, this is an underestimate and the future more realistic amounts can be determined. The annuity factor of 12%, cost of capital, and based on the useful life of 25 years is 7.838843 annuity. Annuity टॉपर ने निकाला था।
तो 25 डायरेक्ट दे years दिया है यहाँ पे। बट डायरेक्टली दिया हुआ है नीचे। 7.843। इसमें से मैं पहले 4 साल का लेकिन माइनस करूंगा। ये कुछ लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम्म। हाँ 4 पॉइंट, हाँ बराबर 4 पॉइंट वो आया था अपने बराबर थ्री बराबर। पॉइंट जीरो थ्री सेवन 3.037। तो ये मुझे देता है एन्युटी 4.806। ये मैंने जो इतना निकाला था, ये 4.806 मुझे एन्युटी मिलती है। मेरे जो कैश फ्लोज है, लेकिन मेरे कैश फ्लोज वो एकदम अड़ल रह रहे हैं 5488 पे। सो टोटल वैल्यू फ्रॉम years 5 to 25 is, तो ये है मेरा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है ना। उसके बाद Kero Innovations has suggested it may तो offer to इसका purchase प्रेजेंट the। वैल्यू नहीं निकालेगा किसका? कैश फ्लो का? मुझे एन्युटी दिया है ना डायरेक्टली। बट ये तो कैश फ्लो दिया हुआ है ना, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। हाँ, तो उसका पीवी तो निकालेगा ना 1 to 4 का तो। मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैं मेरा नहीं, देखो कैसा है पता है क्या, ये देखो। मेरा जो 5488 है उस पे जब मैं डिस्काउंटिंग लगाता हूँ 0.636 का, तो मेरे को 3490 मिलता है। बराबर है? बराबर है। नहीं समझा। सुनो सुनो, मेरा स्क्रीन देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं मेरा शेयर फाइव करता हूँ। पॉइंट एट हाँ ये समझा, इसके ऊपर तू एन्युटी लगाएगा, मैं वो मना नहीं नहीं नहीं, कर रही, सुनो ईयर सुनो 4। सुनो तो यार, ये देखो। मैं अगर अभी ईयर 4 का मैं एन्युटी लगाऊंगा, सॉरी वो डिस्काउंटिंग लगाऊंगा, बराबर, तो वो मैंने डिस्काउंटिंग लगा दिया है। वो डिस्काउंटिंग 0.66 लगाने के बाद मेरे को ये प्रेजेंट वैल्यूज मिले। बराबर है? हम्म अभी ये जो मेरे हम्म 5488 है, ये मेरे अगले 20-21 सालों तक मतलब वो चलते रहने वाले हैं। बराबर है? अब उनको हम्म। जब मैं प्रेजेंट वैल्यूज पे लेके, तो ये एन्युटी एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ही है। आप समझ रहे हो क्या? हाँ वो तो ये एन समझा। मैं यही पूछ रही थी तूने ईयर 1 to 4 पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया कि नहीं अच्छा, लगाया। वो पूछ रहे थे, मेरे को लगा था एन्युटी लगाने के बाद प्रेजेंट तूने तो वैल्यू लगा रहे क्लियर कि नहीं। बोली भी कि तूने 1 to 4 पे लगाया ना करके ऐसा। 1 to 4 आपने नहीं बोला था यार। अरे ठीक यार। है, छोड़ो, जाने दो, चलो मेरी गलती, मैं माफी मांगता हूँ। मेरी गलती। आई लाइक टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। ठीक है। चलिए, तो माफी मांगी। चलो, ये भी डन, ये भी डन। इसको मैं लेके आ जाता हूँ नीचे, कंट्रोल V करके, और यहाँ पे आ जाए प्रोजेक्ट बी। तो ये मेरा जस्ट मीट हो रहा है, मतलब इधर मेरा एनपीवी जस्ट बन रहा है वैल्यू 3.74 का। आपका हो जाए तो बता देना। तो अब क्या करने का? चेक करते हैं पहले, ये जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 29,000 हमको मिला है 31,744। आई थिंक वो राउंड ऑफ एंड ऑल के वजह से ही हुआ रहेगा मोस्टली। आई फील कि ये लोग ने बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ करते हैं लोग, बट ठीक है। वी आर स्टिल क्लोज टू द आंसर विच इज़ फाइन। इसके बाद अभी उसके बाद इन्होंने बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द पोटेंशियल ऑफर बाय कैरो इनोवेशंस। तो मतलब वो बीएसओपी मॉडल लगाना है। ये लोग ने नहीं, ऑफर किया है कि हम लोग को बेच दो करके। 31744 आ रहा है आंसर मेरा। यस परफेक्ट, यस यस परफेक्ट, पर मुझे भी सेम आ रहा है।
उन लोग को 29,000 आ रहा है बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो राउंड ऑफ किया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा, बट ये लोग वन नाइन थाउजेंड्स में ही फाइव वैल्यू फोर क्यों लेते हैं? मतलब। मतलब अभी जैसे तू अभी कर रहा है 3490, ठीक है। हम्म मेरा अगर मैंने पूरा, लाइक मैंने इन थाउजेंड नहीं लिया हुआ है, मैंने पूरा अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है। हम्म 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 तो हम्म। उस हिसाब से तो अपना आंसर परफेक्ट है ना। नहीं, मैंने भी मतलब मैंने भी वो क्या बोलते हैं वो थाउजेंड्स में ही किया हुआ है, मेरे को भी 31.744 ही आ रहा है। वो लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं मतलब अच्छा। बैक ऑफ द कैलकुलेशंस, हाँ, वो मैं है, मैं वही इसीलिए आंसर बोल रही हूँ, डिफर मैं करता वही है। बोल रही हूँ। वो इतना बड़ा राउंड ऑफ क्यों कर लेते हैं वैसा? वो तो मुझे भी नहीं पता। इन थाउजेंड्स में वो लोग इतना बड़ा राउंड ऑफ करते हैं ना। हम्म। अभी ये बीएसओपी कैलकुलेटर, अभी इसमें बीएसओपी कैलकुलेटर की जरूरत है, तो हम यहाँ पे मैंने आई थिंक खुला हुआ है ये ये था। तो ठीक है। फिर रुक, इस बार बीएसओपी। मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरे को ना हम्म। this याद नहीं है। ठीक ठीक ठीक, ठीक बोलो है। आप बोलो। तो सजेस्टेड इट में ऑफर इन्वेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4 फॉर 25 million। हम्म मतलब अपना ट्वेंटी हम्म सेवन मिलियन ड्यू टू अनसर्टेनिटी सराउंडेड द इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो वेरीज बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 40 एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज 5। अभी उस पे हम्म जा। हम्म तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब टी ना। हम्म। याद करना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, तो स्टैंडर्ड इधर डिविएशन मतलब एस। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस, तो वहां पे 40 आएगा। हम्म। फिर रेट तो 12% है अपना। नहीं, रिस्क फ्री रेट है ना, रिस्क फ्री रेट कितना है? 5%, सॉरी। हम्म हम्म। और टिल 4th ईयर बोला है ना, तो उसके बाद का कैश फ्लो अपना है 2637। हाँ, ये तेरा जो 5 टू उन्होंने ट्वेंटी कब फाइव वाला खरीदने को आएगा बोला ना। है? उन्होंने बोला है किरो इनोवेशन हैज फोर्थ सजेस्टेड दैट ईयर इट मे ऑफर टू परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर। हम्म। तो ये भी आएगा ना थ्री फोर जब नाइन जीरो वंस सो कैश फ्लोज foregone would be दिस 26,375 plus this 29,8। एक क्वेश्चन पूछूं, कैश फ्लो फॉर गॉन तो 1 to 3 years का होगा ना फिर पर। नहीं, वो तो हमने उतने सालों तक हमने काम किया ना, एक दो तीन साल फोरगॉन मतलब कि हम लोग अभी फोरगो कर रहे हैं कि इतना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कमाने की, लेकिन हम उसको जाने दे रहे हैं, ऐसा। ओके ओके। 29,865.33, 29,865.33। अभी ये पीई पी है बताओ। 27। बराबर। टी इज टैक्स, राइट? नो, टी इज टाइम। टाइम हम्म 4 years से कर रहा है ना अपन। कितने टाइम तक स्टार्ट आपने ऑफ ये फोर प्रोजेक्ट ईयर को तो काम रखा? कितना? 3 years। परफेक्ट, मुझे लगता है यही होना चाहिए। स्टार्ट ऑफ 4 years कर रहे थे। इसको ना मैं इसमें यहाँ पे 29.865 करके देखता हूँ और यहाँ पे 27 और करके यहाँ पे देखता हूँ, 27। हाँ, तो परफेक्ट। 10.95। तो अपना तो अभी पुट आएगा ना अपन। हाँ, बराबर है, पुट आएगा। लेकिन आपका, नहीं, एक मिनट, आप, हाँ बराबर है, आप बेच रहे हो, बराबर बराबर, यू आर, मतलब वो बीच में आप बंद कर रहे हो। ये मैंने गलती से यहाँ पे बंद वो कर लास्ट देते। सम में, लास्ट सम में कॉल्स था तो इसलिए मैंने वैसा किया। यहाँ पे 4326, लेकिन आपका यहाँ पे एनपीवी 31 का बन भी रहा है, सो 31.528 प्लस 4
326 या जो भी, अभी ये तो मेरा थाउजेंड्स में है बेसिकली कैलकुलेशन, तो दिस शुड बी, अगर मैं जेन्युइनली मिलियंस में करने जाऊंगा ना तो देखते हैं कितना आता है। 31 कितना है, 440 ऐसा ही कुछ तो है ना। 31,744। 31744, तो आंसर आता है 4 मिलियन 30, बेसिकली बेसिकली 43,58,000 ऐसा कुछ तो आंसर आना चाहिए अपना। चेक करते हैं। हम्म। ठीक है, सारे अपने वेरिएबल्स भी एकदम बराबर है। पुट ऑप्शंस, ये देखो। ये देखो, 43,59,000 उनको आया है, अपने को वैसे ही कुछ तो आया है, 58,726, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका वो 29 है और अपना 31 है, बराबर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये अपना बिल्कुल सही है। मेरे को आगे एक बार बढ़ते हैं। समझाओगे क्या थोड़ा, अपन ने एनपीवी क्यों ऐड किया उस पे? सो बेसिकली ये जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, रियल ऑप्शंस कर रहे हैं, बराबर है ना। व्हाट डज रियल हम्म। ऑप्शंस एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट? रियल ऑप्शंस एक्चुअली टेक्स इनटू अकाउंट कि मेरा, अ, अगर मैंने प्रोजेक्ट आज कंटिन्यू रखा तो मेरे को कितना है, हम्म। लेकिन अगर मेरे को बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी गई बेचने की तो भी कितने की है, ऐसा। ओके। बराबर है। अभी एनपीवी क्या करता है कि मैं कि नाउ और नेवर बे, मतलब वो बेसिस पे करता है कि मैं आज करूंगा ये या फिर मैं नहीं करूंगा। बराबर है। इस बेसिस पे करता है। तो इसलिए वो मेरा है, वो तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज वो मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। लेकिन मेरे इस डिसीजन में कि मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसकी उसकी वोलेटिलिटी कितनी है। 40% फोर्टी डेविएशन। परसेंट हाँ। की वोलेटिलिटी, तो मेरा 40% मन बदल सकता है। मैं 40% प्रोडक्ट बेच भी सकता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट बेच भी सकता हूँ बीच में मेरा मन किया तो। तो उसका वैल्यूएशन कितना है, 4326। तो ये मेरा टोटल वैल्यूएशन है कि एक तो मैं बिजनेस कंटिन्यू रखते जा रहा हूं जो मेरा फर्म है, मतलब मन। लेकिन अगर मेरा मन बदल गया और मेरे को बेचने का मन किया तो 40% ये भी चांसेस है कि मैं, मतलब क्या बोलते हैं, बेच सकता हूँ। तो इसलिए मैं दोनों को ऐड ओके। करता हूँ, ये जानने के लिए कि मेरी एक्चुअल वैल्यूएशन कितने की बनती है फिर, ऐसा। मेरे को ये सवाल आया था कि अगर ये वैल्यूएशन 40% का है तो हम लोग एनपीवी को 60% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, ये निकालने के लिए कि भाई 100% वैल्यूएशन कितना है। लेकिन ये जो है एनपीवी, ये तो आज की रियलिटी है कि मैं प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं। वोलेटिलिटी इज नॉट द रियलिटी, ऐसा है। वोलेटिलिटी इज ओके। जस्ट अ चांस दैट वी माइट टेक। तो बेसिकली रियल ऑप्शंस आपको वो ऑप्शन देता है फ्लेक्सिबल होने का, वेरएज एनपीवी में आप प्रोजेक्ट बेच नहीं सकते बीच में, ऐसा है। हम्म। ठीक है, तो ये था सम। अब आगे आगे बढ़े। हाँ हाँ। Based on the financial grounds, recommend whether investment A or investment B should be undertaken and discuss the assumptions made in the calculations. This should be done prior to discussing the comments made at the board of directors meeting. तो हमारा वहां पे कितना आ रहा था, 4330 ऐसा कुछ तो आ रहा था, या 4326 ऐसा समथिंग समथिंग आ रहा था, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं करूंगा सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ दिस, तो मेरा टोटल वैल्यूएशन आता है 4397 का, और ऊपर मेरे को आया था 5721 का। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ए सिलेक्ट होना चाहिए। ए ठीक है। इज बेटर। हम्म हम्म इज दैट, अभी ये सब की डायरेक्टर्स को वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स बढ़ाना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट ए लेना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अजम्पशंस तो बेसिक वाले ही हैं अपने, की टैक्स स्लैब रेट के अनुसार नहीं लिया गया है। उसके बाद आगे रिस्क फ्री रेट कांस्टेंट, मतलब वो रखा गया है। इक्विटी परसेंटेज, या जो बेसिकली वो जो 12% है वो ऑन व्हाट बेसिस हमने डिटरमाइन किया हुआ है, वो सब बता देंगे। देखो, the report provides estimates on whether the production facility which needs to be replaced should be traditional technology
or new technology to produce jet fuel in financial terms. Based on this, it makes an initial recommendation. The report discusses the assumptions made in the computations. The report discusses the assumptions made in the computations. The report then discusses the comments made at the board of directors meeting and suggests. तो बेसिकली ना ये जो है ना इंट्रोडक्शन, इसमें जो जो हमें पूछा गया था ना, क्या बोलते हैं वो अपने हम्म, क्वेश्चंस में, चारों के चारों वही हमें यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन में. ये मैंने अभी जस्ट नोटिस किया है बहुत सारे समझ में. ठीक है. क्या क्या फिर ये क्या, वापस चार, वापस, सॉरी। अभी ये जो है ना इंट्रोडक्शन, ये हम्म। इंट्रोडक्शन, ये आपको जो क्वेश्चन हाँ। पूछा गया है ना, वही आपको यहाँ पे लिखना है हम्म। कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है. तो वो चार क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए ओके हैं ना, ओके। वही आपको इसमें डालने हैं. ऐसा. ओ नाइस, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ। फिर ये आता है करंट वैल्यू एस्टिमेट्स. करंट वैल्यू एस्टिमेट्स में एक अब आपन ने एक जो एस्टिमेट किया है वही. बोलो बोलो. हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे को, तुम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तू था कि नहीं, आई डोंट नो। तूने हम्म. हर क्लास अटेंड किया ना दोस्त? वाह। हाँ. वो हाँ, तो उस दिन क्लास में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट अलग आ रहा है, लाइक फॉन्ट चेंज हो रहा है, समथिंग लाइक हाँ, दैट। वो तो मैंने ही बताया था बराबर. हाँ, तो अपन एग्जाम में कॉपी पेस्ट करेंगे तो चलेगा, बट वो लोग को चलता एग्जामिनर है को तो चलता पता है चल जाएगा ना कि इसने चलता कॉपी है. पेस्ट किया हुआ है। एक्चुअली ना एसबीएल के टाइम पे ना मैंने ये नोटिस किया था कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा एसबीएल के टाइम पे थोड़ा सा नहीं आ रहा था कलर में बदलाव. हम्म। बट होता है, यूजुअली वो चेंज होता है. ऐसा है. तो मतलब अगर तू वो जो अपना वो जो बॉक्स देते हैं यूज करने के लिए, सेपरेट बॉक्स हम्म. का नाम, हम्म. उसमें से भी कॉपी पेस्ट करेगा, क्वेश्चन में से भी नहीं कि तूने हम्म. स्पेयर में रफ में किया हुआ है, उसमें से कॉपी हम्म. पेस्ट करके इसमें ला रहा है, तो भी पता चलेगा ना कि थोड़ा वो बहुत भी पता चल सेम ही है। जाता है कि थोड़ा सा कलर में बदलाव आता है कई बार, बट वो चलता है. इट डजेंट मैटर. वो कंसिडरेशन ओके कर ओके, देते हैं उस चीज के लिए. ठीक है, हाँ, मेरे को ऐसा. यही पूछना था। Investment B, without considering an offer from Kiro Innovations, only the marginal positive value, and even when the potential offer from Kino Innovations is considered, using the BSOP model, the value of 4349 is less than the value obtained from the investment A. 5716 बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू अंडरटेकन. ठीक है. अजम्पशंस तो ठीक है कि सारे इन्फ्लेशन रेट्स अजम्पशंस है. सारे ही ये सारे के सारे बेसिकली जो उन्होंने क्वेश्चन में हाँ, दिया ये हुआ है तो ना. अपन वो क्वेश्चन से वही, हाँ, हम्म. लेकिन ना ये थोड़ा मुझे काफी इलाबोरेट करके पसंद लिख आया था, देंगे। बिकॉज इसमें इन्होंने ना बीएसओपी के कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं. तो मैं ना आपको कुछ बेसिक बेसिक ओके। अजम्पशंस बता देता हूँ बीएसओपी के. आप उसी को लिखते जाना, ठीक है. हम्म तो एक है कि ये हम्म। वोलेटिलिटी अज्यूम करता है. एक मतलब ये एक्यूरेटली एस्टिमेट करता है वोलेटिलिटी को, लेकिन आप वोलेटिलिटी को एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कभी भी. ठीक है. ये है. हम्म। ओके. उसके बाद ओके। बीएसओपी मॉडल वोलेटिलिटी बोला, फिर ये मतलब ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को कांस्टेंट अज्यूम करता है कि ये आने ओके, वाले 25 सालों तक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहेगा, या आने वाले 3-4 सालों तक रिस्क कांस्टेंट रेट ऑफ रहेगा। रिटर्न कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद ये अज्यूम करता है कि आज हमें जो ओरली वादा किया जा रहा है कि हमें 27 मिलियन मिलेंगे 3 साल बाद जो कीरो इनोवेशंस देगा, इट माइट नॉट बी ट्रू. कि शायद 3 साल बाद जब हम कीरो इनोवेशंस के पास जाएंगे कि भाई बॉस हमको अब ये बेचना है, शायद कीरो इनोवेशंस अपना वैल्यूएशन कुछ और रख दे. 3 साल बाद वो प्राइस हम्म। सेल का कुछ और ऑफर करेगा. सो ये अज्यूम करता है कि 3 साल बाद भी प्राइस सेम रहेगा. बीएसओपी मॉडल इज लाइक रियल ऑप्शंस, एंड रियल ऑप्शन ये कंसिडर होते हैं यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस. ये अज्यूम करता है कि रियल ऑप्शंस आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस. यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस आर नॉट ऑप्शंस विच आर मेड इन यूरोप और आर मतलब वो यूज्ड इन यूरोप. दे आर जस्ट नेम. यूरोप वो बस नाम है उनका. तो ऑप्शंस के दो टाइप ओके। होते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस एंड अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस. यूरोपियन ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेबल ओनली ऑन द लास्ट डे or only on the last date or the exercise date. American options can be exercised any time between that period. एक्सरसाइज डेट के पहले आप कभी भी अज्यूम करके जा सकते हो. हम्म 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 हम्म। ठीक है. अम,
ये होते हैं, ये अपन कुछ कुछ बाय हार्ट करके जा सकते हैं। अभी मेरे को एक अभी क्वेश्चन है, बोलना। बेसिक अजम्पशन का क्वेश्चन आया तो कितने अजम्पशंस लिखने हैं अपने को अंदाजा? ये तो मतलब मैं भी नहीं रिपोर्ट बता आया सकता। तो कितने अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो यूजुअली देखो कैसा है कि मैंने मैंने अभी मतलब वो जैसा बोला कि असम्पशंस मतलब वो आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं बहुत सारे कि रेवेन्यू का इन्फ्लेशन इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे आपको जितने आ रहे होंगे आप बस वो लिखते जाओ ना, क्योंकि आप देखो कि आपको 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मतलब वो क्या बोलते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म के लिए है। तो 10 मार्क्स अगर प्रोफेशनल तो आप समझा। मतलब आप लिखते जाओ ना, जितने भी आपको लिखने हैं उतने। ओके डन। When calculating the value of the offer, अभी अपन ये पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं कुछ कुछ। When calculating the value of the offer made Kiro Innovation using the BSOP, the standard deviation, volatility, and the underlying asset is needed, and the BSOP model assumes that this can be estimated accurately. This can be possible for frequently traded products, but this probably is not the case for one-off projects and new projects. Since estimation is difficult and to do and is open to significant errors, therefore, the assumption of the accuracy and the volatility measure is questionable. The BSOP model assumes that markets are fractionless and the project's cash flows follow a log normal distribution, both of which are reasonable assumptions for market traded products but are not necessarily for investment projects. ये मुझे नहीं पता log normal distributions वगैरह, very honest with you. The BSOP model assumes that once determines the variables will not change, but in reality they may not or they may do. ठीक है। फिर in order to estimate the value of Kiro Innovations offer for investment B, Parafuels has assumed that the offer is binding, but currently it is only a potential offer. See, same line जो मैंने बोली, इन्होंने बोला है कि इन्होंने बोला है कि ऑफर इज बाइंडिंग, मतलब इनको करना ही पड़ेगा 27 मिलियन पे, हम लोग जब आएंगे तब। बट ये सिर्फ एक पोटेंशियल ऑफर है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है ऐसा, हम्म। वैसे इन्होंने बोला हम्म। है। फिर द एस्टिमेट ऑफ वैल्यू resulting from the calculations in appendices should therefore be treated as indicative and not definitive। ठीक है। Okay. तो ये कुछ कुछ असम्पशन है, मतलब वो जितने मैंने बोले या एक दो अगर आप भी पढ़ लोगे तो आपको वो याद हो जाएंगे, उसका कोई सीन नहीं है। हम्म। आगे, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड्स recommend वेदर इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी, नहीं ये तो हो गया सॉरी। फिर ये डिस्कस द कमेंट्स मेड at the board of directors meeting and suggest how parafuels may wish to proceed if the new technology is adopted। चलो ये है अभी comments made at the board of directors meeting। Parafuels Company's board of directors met to discuss adopting the new technology for its production facility replacement based on converting household waste into paraffin. The following comments were made at the meeting. The company's CEO gave an enthusiastic talk about the need for parafuels to fulfill its environmental, social governance responsibilities. Okay. The CMO pointed out that it is likely that the airlines around the world will face increasing pressure on their ESG and in particular how they are helping to protect the environment. However, the CMO also said that the airlines will need to ensure that this type of jet fuel is safe to use. Hmm. ठीक है। The CFO is more cautious. She pointed to the fact that there is no binding contract with Kero Innovations. She also said that while Parafuel Company shareholders would be supportive of the company pursuing an environmental agenda, the majority of the shareholders will be concerned if that led to significant negative impact on the corporate value. Perfect. The CFO reminded the board of directors that although only one production facility needs to be replaced very soon, more will be replaced after 2 years. Okay.
And nevertheless, the CFO suggested that if this new technology becomes established and produces jet fuel, which is safe to use, Parafuels will get the benefit of being one of the first companies to adopt new technology for the production facility. This could be advantages in terms of cost मतलब वो reduction and revenue maximization. Hmm. बताओ अभी. सी एवरी कंपनी नीड्स टू फुलफिल द ESGs बराबर है. अपने अपने ESG रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं which every company needs to fulfill. The same must be हम्म, the case with Parafuel company and ठीक है. However, ठीक है. however, the marketing director pointed out that airlines industry are facing increasing pressure of ESG agendas, बराबर है, and helping them protect the environment. Thus, parafuels must be facing the such same issues because of increasing fuel usage and so on, बराबर है. So, their new technology, ये जो बोल रहे हैं. Hmm. Thus, the second alternative based on converting the household waste into paraffin using new technology, which has a potential for dramatically reducing the environmental damage caused by air traffic. ये सब हम copy paste करेंगे और लिखेंगे has the potential, ठीक है, has the potential to save huge energy savings and help the company fulfill its ESG practices. ये पहला वाला उतना नहीं हेल्प कर रहा क्या? हम्म. सी एज पर द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग अगर पहले ऑल्टरनेटिव के साथ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा. इफ द फर्स्ट वन इज चोजन देन रिप्लेसिंग दिस प्रोडक्शन फैसिलिटी विद अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी which will be modern and largely environmentally friendly. This facility will continue to produce paraffin from crude oil and is based on the traditional मतलब वो टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी. तो पहले और दूसरे दोनों में ईएसजी मॉडल सेव है. मतलब दोनों के दोनों अपने को एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में ही हेल्प कर रहे हम्म, हैं. लेकिन लेकिन ये हम्म, बंदे ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है सीएफओ ने कि आज आज हमें शायद मतलब सिर्फ एक बदलना पड़ रहा है फैसिलिटी, लेकिन आगे चल के हमें और फैसिलिटीज बदलने का कॉस्ट बर्डन आने ही वाला है. हम्म. So the company would have to face cost burden of replacing its other production facilities. Now this depends upon the company's risk appetite and nature of work, that whether would they like to change all the production facilities one by one or would rather select the second alternative जहाँ पे हम लोग एक साथ में ही सिर्फ हमारे जेट फ्यूल को ही मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक जगह पे हम बस मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी अलग कर रहे हैं, मतलब वो निकाल रहे हैं और दूसरे में हम लोग हमारा फ्यूल ही चेंज कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी सेविंग हो ऐसा. तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट बाय सीएफओ changes the attitude of the company of looking at the investment A because now भले ही उनको एनपीवी वहां पे ज्यादा आ रहा है, लेकिन आगे चल के एक ऐसे मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी बदलते रहने में उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट बर्डन होगा. उससे अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी लेना बेटर है करके. हाँ, अभी आप भी कुछ बोलो ना, एक दो पॉइंट्स ऐसे ही कुछ तो छोटे मोटे जो मैं डाल पाऊँ वहां पे. छोटे मोटे. ठीक है. ओके. शांत रह रहे हो आप बहुत इसके लिए. कुछ भी. मैं बस सुन रही थी. शी आल्सो सेड दैट पायलट shareholder will be supportive of the अभी all the production facility need to be replaced. ठीक है. अभी अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वजह बिहाफ पे भी सोच के बोल सकता है ना, क्योंकि इसने सीएफओ ने क्या हम्म. बोला है, शेयर होल्डर वुड बी सपोर्टिव कि वो दोनों एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है. बट अब अगर हम्म. अपन ये
ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब इन्वेस्टमेंट ए ले रहे हैं, तो हाँ। वो भी अपन ट्रेडिशनल अप्रोच ले रहे हैं, बट जैसे हम्म। जैसे वो कॉस्ट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो शेयर होल्डर को भी तो इम्पेक्ट करेगा ना, कि हाँ, राइट भाई राइट राइट। आई नो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है बट ओवरऑल जो शेयर होल्डर वेल्थ है उसको वो अफेक्ट करेगा। राइट 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 राइट। फिर इवन हमें ऊपर बार बार फाइनेंस मतलब वो रेज करना पड़ेगा, तो वो हम फाइनेंस रेज इतना सारा कहाँ से हाँ करेंगे? हाँ, हो सकता है फिर इन वो सेंस। डेब्ट गैरिंग इशू आ जाए उसकी वजह से बराबर है। कंपनी के लिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी जो है उससे शायद उतना एनपीवी या उतना मतलब वो रिटर्न्स ना कमाए, लेकिन पॉसिबल जो हम्म मतलब जो क्या बोलते हैं वो लिटिगेशन या पॉसिबल गवर्नमेंट पेनल्टीज वगैरह जो है वो मतलब हम्म वैसे वो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव कर ले। हम्म। Initial अभी हम्म। भी और क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट बी के बेचने के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं क्या, फ्यूचर में हम बेच रहे हैं। प्रोडक्ट भी हमें बेचने की अपॉर्चुनिटी भी देता है कि अगर हमें उतने ज़्यादा रिटर्न्स हम्म ना मिले तो शायद हम किसी को बेच के हम्म भी हम शायद उतने पैसे कमा सकते हैं, और फिर बाद में ये सेम फ्यूल जो है इस इंसान से खरीद सकते हैं एट अ कम प्राइस पे, मतलब ऐसा। तो ये सारे हमें बहुत सारे ऑप्शंस हम्म देता है करने का। राइट, ये सब भी बोल हम्म। सकते हैं। फिर अभी ये fuel environment and social government ESG responsibility that it is likely that recently showing the CFG हम्म। चेक करना है क्या? एक आधा पॉइंट और एक सेकंड मतलब हाँ हाँ, सोचने चलेगा for चलेगा। the CMO also said the airline will need to ensure that this type of शायद न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से हमें कॉम्पिटिटर एडवांटेज भी मिल जाए। हाँ वो भी है। शायद, क्योंकि देखो और एक मिनट ये है कि सॉरी, हाँ एक मिनट। इन्होंने बोला है सारी की हम्म सारी एयरलाइन इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड को मतलब ईएसजी फुलफिल करने का प्रेशर आया है। अगर हम लोग ही डेवलप कर हम्म दे एक ऐसा फ्यूल जो हम जो तो क्या हो जाएगा कि बाकी की जो एयरलाइंस है उनको भी जो प्रेशर है उसके वजह से उनको फ्यूल खरीदना पड़ेगा शायद। हाँ मतलब वो हाँ हमारे तरफ से, सो शायद हम वो भी कर सकते हैं, बट पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैं तो बोलूंगा भाई। अच्छा हम्म। लगा। हाँ बट ये दिस इज गुड पॉइंट जो तुमने मार्क किया हुआ है। हम्म। अगर ये बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ फ्यूल इज सेफ टू यूज करके तो फिर हाँ वो हम्म। तो ऊपर ही दिया है ना कि अपन एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है करके, बट हम्म। सेफ टू यूज है कि नहीं वो तो दिया है ना पैराफॉर्म। हम्म। अभी अगर अपन लाइक न्यू मेथड अप्रोच कर रहे हैं ठीक है, हाँ। तो इसमें इन डिटेल नहीं दिया हुआ है बट हो सकता है अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है लाइक लेबर कॉस्ट वगैरह वो सब कम हो जाए हम्म। थोड़ा। आई नो एनपीवी नहीं आ रहा उतना बट कॉस्ट हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, बिकॉज इसका सेटअप कॉस्ट ही ज्यादा है मेन स्टार्टिंग का, इसके लिए वो हम्म। एनपीवी डिफरेंस आ रहा है। देखो ना फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है कि इसका राइट। सेटअप कॉस्ट ज्यादा है एंड रनिंग कॉस्ट आर एक्सेप्टेड टू रिड्यूस वंस द टेक्नोलॉजी बिकम्स एस्टेब्लिश्ड। बराबर। ठीक है। ठीक है देखते हैं आंसर। चेक करते हैं। Adherence to environmental social governance aspects are becoming increasingly important criteria by which to judge a company as a good corporate citizen for from the perspective of
all stakeholder groups, including the investors. Whether Parafuel company decides to undertake the replacement of the production facility with traditional technology which uses crude oil or new technology using household waste, this will impact on the company's expected environmental responsibilities, the perception of how it discharges these, and thereby impacting its reputation as a good corporate citizen. This is probably why CFO is referring to. However, board of directors should equally be cautious about pursuing an agenda which comprises parafuels financial strength. तो ये उन्होंने बस खाली ओपनिंग दिया है और कुछ नहीं प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा वाला ज्यादा बेटर है मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ईएसजी में बेटर वो सिटीजन का आएगा वो सब बस ओपनिंग है इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है आगे as CMO suggests, airline companies will be concerned about their responsibilities with respect to environmental and using this type of jet fuel would be significant help in achieving high level of environmental protection. Therefore, both parafuels company and its customers, the airline companies, are in agreement. The airlines will be naturally concerned about the safety aspects of the new product. However, once the new type of jet fuel is proven to be safe as the current type of jet fuel, these concerns should dissipate and सेल्स रेवेन्यू वुड प्रोबेबली इंक्रीज मतलब वो रैपिडली परफेक्ट तो ये हमने लाइन बिल्कुल सही बोली थी कि कॉम्पिटिटर्स या एक्चुअली हमने कॉम्पिटिटर्स मतलब बोला था हमको एक्चुअली एयरलाइंस हमारे जो कस्टमर्स है वही बोल देना चाहिए था कॉम्पिटिटर्स को हम क्यों बेचेंगे ना कॉम्पिटिटर्स तो एक्चुअली वी विल ट्राई हाँ टू क्रिएट अ मोनोपोलिस्टिक मतलब वो सिचुएशन और कॉम्पिटिटर्स को निकाल मार्केट देंगे यस मार्केट से हम्म। CFO. CFO has put forward the argument that financially parafuels does not benefit from moving to the new technology currently. Furthermore, whereas there should be a positive uplift once the fuel is deemed safe, the current computations do not necessarily show this. CFO appears to be concerned that if more production facilities are replaced with the new technology, this will reduce the company's and the shareholders' value. Nonetheless, it is possible that over the coming 2 years, Parafuel will have a much better knowledge of this type of jet fuel and its safety. Therefore, the computations will be more reliable. Therefore, the computations will be more reliable and might well show a substantial positive value creation impact. The significant advantage for Parafuels company if it went with the new technology is that as an early adapter it should benefit from positive learning curve effects and ways to make the production of the jet fuel more efficient ठीक है तो ये हमने नहीं बोला था लर्निंग कर्व इफेक्ट कि हम लोग गलतियां कर करके सीखेंगे या फिर एक टाइम पे इतना हम्म ज्यादा मतलब बेटर कर लेंगे कि विल बी द बेस्ट एट इट ऐसा सब हमने नहीं सोचा था बट हमने फर्स्ट एडाप्टर या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये तो बोला था हम्म than would be the case if they continue with the traditional technology. This would result in the reduction of ongoing cost. The setup cost in the future may also reduce if the company establishes better ways of construction production facilities needed in 2 years time. तो ये जो आपने बोला था ना वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बस उसमें लेबर नहीं आएगा हम्म उसमें सिर्फ वो सेटअप कॉस्ट आएगा रेवेन्यूज सेटअप में कॉस्ट भी ऑल्सो रिड्यूस हो जाएगा हाँ, revenues may also increase as parafuels will have more time to build better customer networks and relations and a better marketing strategy, all built around the fuel coming from the adoption of the new technology. ठीक है कस्टमर्स नेटवर्क वाइडन हो जाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेटर हो जाएगी एंड सो ऑन अभी हाउ शुड पैराफ्यूल कंपनी प्रोसीड इफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज adopted for the single production facility initially parafuels may wish to proceed as follows company should launch a PR campaign to highlight the environmental credentials, build its reputation, thereby hopefully increase the corporate value. ठीक है मतलब बेसिकली एडवर्टाइज करना चाहिए company should also launch हम्म PR campaign to reassure its investors that it aims to maximize the long-term corporate value and its move to new technology is very much in keeping with that.
फिर since there may be safety concerns initially, the company may want to support research investigations to assess the safety of the fuels, including financial support, especially in conjunction with the airline companies involved in this research and possibly other interested companies such as Kiro Innovations. ठीक है. आगे, the company should put into place effective process to maximize learning opportunities from the investment made in the first production facility. It should then use its learnings to reduce cost and production. ठीक है, तो ये सेम चीज, डिविएशंस वगैरह देखो, कॉस्ट हम कहाँ पे कम कर सकते हैं, हमने क्या सीखा है उसको अलग अलग फैसिलिटीज में इम्प्लाई करो. The company should ask Kiro Innovations to make a formal contractual offer and possibly align it in 2 years, when it will need to make further decisions in case the new technology proves to be feasible. Sorry, proves not to be feasible. बराबर है कि पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफर लेके रखो जहाँ पे 2 साल बाद हम ये मतलब एक क्या होता है वो अलाइन इट्स 2 years, पॉसिबली अलाइन इट इन 2 years. अब उन्होंने वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफर को नहीं बोला है कि वो कंपलसरी है या वो हम लोग को अगर मन होगा उस टाइम पे करना है तो मतलब वगैरह वो सब उन्होंने नहीं बोला है, बस उन्होंने बस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफर इतना ही बोला है. इन केस द न्यू टेक्नोलॉजी प्रूव्स नॉट टू बी feasible. If Parafuels company decides to stick with the traditional technology instead, this technology is still environmentally friendly, and the PR campaigns externally and to investors should proceed. As a result, Parafuels company will hopefully maintain its corporate reputation and value. Conclusion. The report suggests that based on the financial grounds and taking into account the assumptions made by Parafuels company, should replace the production facility with traditional technology. However, the new technology does not offer significant opportunities, especially in terms of environmental benefits, and therefore suggestions are put forward on how Parafuels might proceed. ठीक है. न्यू टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो ये कंपनी के रिस्क एपेटाइट पे कि कंपनी को कैसे प्रोसीड करना है आगे. अभी ये लास्ट ए पार्ट. Explain why Parafuels company might include the value of the potential offer from Kiro Innovations when considering investment B. बताओ. एक पॉइंट जैसे तुमने बोला वो कि हम उसको बेच के फिर उससे लेस प्राइस में खरीद सकते हैं. हम्म. ठीक है. हम्म. और उसका क्या बोलते हैं जो अपना ये है एनपीवी मतलब हम्म. हम्म. अगर बोलो. हम बेच रहे हैं तो अपने को वो अच्छा पैसा लाइक रिटर्न्स मिल रहा है उसके वजह से. ओके. एक पॉइंट के ओके. बाद. चेक कर लेते हैं एक बार आंसर. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि वाई हम लोग कैलकुलेशन के अंडर ले रहे हैं, वाई इंक्लूड पोटेंशियल ऑफर, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एनपीवी सिर्फ उतना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता, वेर एज रियल ऑप्शंस अलाउ करता है. ऐसा. ओके. ये जरा पढ़ो ना. The traditional net present value investment appraisal method assumes that the investment need to be taken on now or never basis, and once हम्म. undertaken, it cannot be reversed. ये तुमने बोला था. हम्म. Most investment have within them certain amount of flexibility, such हम्म. as whether or not to undertake the investment immediately or to delay the decision, whether हम्म. or not to pursue on following opportunities, and whether or not to discontinue an investment opportunity after it has started. हाँ मतलब ये सब opportunity NPVs में नहीं है. This हाँ. flexibility is known as real option can be valued for the company such as Parafuel company. हम्म. Uh,
Caro Innovation Company is potentially offering Parafuel Company the opportunity to discontinue with the investment B if it felt that this opportunity is not worth pursuing, even though the project has been started. Parafuel Company does not have to continue the investment for 25 years, but Hmm. effectively abandoned it after the 3 years. This also gave the Parafuel Company the opportunity to judge likely the likely commercial success of the new household waste product to paraffin in conversion process. ठीक है? Hmm. Hmm. This is the real option and the black spoils ये क्या है? Option price. अच्छा okay sorry BSOP का BSOP. full form. Hmm. Hmm. Model provides a method of uh, valuing this opportunity, which is similar to put option. Parafuel company can then consider the value within its project estimates. तो ये जब भी अपने को बीएसओपी मॉडल या बीएसओपी कैलकुलेटर आएगा ना, तो ये लोग ये सवाल तो हम्म पूछते ही हैं कि भाई एनपीवी में बीएसओपी का क्या काम है, और तुम लोग क्यों उसको कंसिडर कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन आता ही है। फर्स्ट उसमें